after discussion of treatment, we will next discuss principles of prevention. Means, as you already know about this phrase, that prevention is always better than cure. Because अगर हम अपने आप को उतनी उस तरह से prepare करेंगे कि disease cannot attack on our body, then that would be better, because after getting the disease, it is sometimes very difficult to cure it. As in today's scenario, you can see it very well. And for any kind of infectious disease, otherwise you can say, why it is that prevention is always better, because someone is getting, if someone is getting with the infected with the microbe, then firstly to that microbe will enter in a particular body organ, and functions of that particular body organ will be damaged. Sometimes the person may not recover from that disease completely. And secondly, treatment may be what time lagta, you know that it requires sometimes hospitalization, and it can cause a variety of harmful effects on the general health of that person. And thirdly, that person may pose a threat to others if the disease is highly contagious. So that person can become a source for other people to cause the particular disease. So these three are the reasons that it is always, you can say, considered as prevention is better than cure. कि infection जितना कम spread हो उतना ही better है. तो उसके लिए बेटा prevention के लिए हमारे जो treatments हैं, that we'll discuss in this topic. So let us first read this. All of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease. That we have already discussed treatment, but there are three limitations. You can underline these limitations of this approach. कि treatment जो हम कर तो रहे हैं, but उसकी limitations क्या आती हैं? First is that once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. तो फर्स्टली लिमिटेशन ये आ रही कि डिजीज को हम ट्रीट तो कर रहे हैं, बट आफ्टर दैट ट्रीटमेंट ऑल्सो पर्सन मे नॉट रिस्पॉन्ड, और कभी उसकी रिकवरी कंप्लीटली नहीं भी होती. एंड सेकेंडली, द ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, from which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time, even if we can give proper treatment. तो थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटलाइजेशन या बेड रिडन जो होना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बॉडी सफर कर रहा है कोई पर्सन, तो दैट विल ऑल्सो बी, यू कैन से, लिमिटेशन ऑफ दैट. And third is that the person suffering from an infectious disease can serve as the from where the infection spread to other people. This leads to the multiplication of the above difficulties. Mute yourself, beta, from where this noise is coming. The third limitation is that person can serve as a source, कि वो आगे फिर उस disease को spread कर सकता है in case of infectious disease ना. So these three are the major limitations when a person is getting a disease, and during the recovery he may face these kind of problems. So it is because of such reasons that prevention of diseases is always better than cure. Next we'll discuss how we can prevent कि disease हो ही ना, मतलब हमारी surroundings में वो हम किस तरह से उसको prevent कर सकते हैं. So there are basically two ways. Underline also this general and specific way. मतलब principles of prevention, if it is asked what are the principles of prevention of a disease, so there are two principles, general way and specific way. जनरल वे में हम क्या करेंगे बेटा, जितना भी एक्सपोजर है हम उसे कम करेंगे. मीन्स अभी राइट नाउ वी आर, यू कैन से, फॉलोइंग ऑल दीज जनरल वेज, बिकॉज जो स्पेसिफिक वे है इम्यूनाइजेशन, जो हमारी बॉडी को वैक्सीनेट करना, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है फॉर कोविड-19. तो राइट नाउ वी आर फॉलोइंग ऑल जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज. तो जनरल वे में क्या आता है, एक्सपोजर से अपने आप को प्रिवेंट करना. मीन्स हम जितना अपने आप को रोक सकते हैं कि किसी के एक्सपोजर, किसी के कांटेक्ट में ना आए, इफ द पर्सन इज, बिकॉज राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक क्योर आल्सो. ओके, तो हम लोग क्या करें, मास्क पहन रहे हैं, वी आर वॉशिंग आवर हैंड्स टाइमली, मतलब आफ्टर टचिंग अ सरफेस इट इज इम्पोर्टेंट टू क्लीन आवर हैंड्स विद अ सोपी वाटर, और यू कैन से
with sanitizer. So all these are ways, general ways of preventing. So if we look at the means of their spreading, we can get some easy answers. मतलब अलग अलग टाइप की डिजीजेस को हम जनरली क्या वेज है उनसे प्रिवेंशन के. अगर एयरबोर्न डिजीज है, वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड. मीन्स हमें प्रॉपर वेंटिलेशन वाले प्लेसेस पे रहना है, और अगर आसपास बहुत ज्यादा क्राउडेड है तो थोड़ा सा अपने आप को मतलब इस तरह से हमारी लिविंग कंडीशंस या हमारी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ता है इफ वी वांट टू प्रिवेंट एक्सपोजर. For waterborne disease, we can prevent exposure by providing safe drinking water. So this is the must when we should drink water after boiling. अगर कोई waterborne disease आपकी society में या कहीं पर भी like spread हो रही है, तो it is very important to have clean drinking water. This can be done by treating the water to kill any microbial contamination. We can also treat water to kill that particular microbe. For example, bleaching powder can be used, ozone can be used, chlorine tablets can be used, potassium permanganate can be used. So there are many chemicals which can kill microbes present in water. So either we can boil water or we can use such kind of antimicrobial. एंड फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज, जो डिजीज बेटा वेक्टर स्प्रेड कर रहे हैं लाइक हाउस फ्लाइज हैं या मॉस्किटोज हैं, जो बेसिकली मलेरिया, डेंगू, तो वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरमेंट्स एंड वी कैन रादर समटाइम्स स्प्रे इन इंसेक्टिसाइड जो मॉस्किटो के लार्वा को किल करती हैं मेडिसिन. वो इंसेक्टिसाइड्स लाइक डीडीटी स्प्रे, मैलाथियन स्प्रे कैन बी डन इन ऑर्डर टू किल मॉस्किटो. और अपने आसपास स्टेगनेंट वाटर को हमें अलाउ ही नहीं करना स्टैंड होना. ठीक है, तो दीज आर सर्टेन प्रिवेंशन मेजर्स फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस. तो वी शुड नॉट अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन आवर सराउंडिंग्स. तो पब्लिक हाइजीन जो अगर हम एक मतलब कलेक्टिवली एक निकालें जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम माइक्रोबियल और infectious disease is that public hygiene. ठीक है, तो this is the basic key to prevention of infectious diseases. And in addition to these issues that relate to the environment, there are some other general principles to prevent infectious disease. अब cleanliness और hygiene के अलावा एक चीज और important है जो that is very important, that to have nutritious food. जितना आप food अच्छा खाओगे, diet अच्छी लोगे, that will improve your chances of you can say fighting with that particular microbe. Okay, so one activity is there to appreciate these principles. Let us ask a question we have not looked so far. Normally we are faced with infections every day. If someone is suffering from a cold and cough in the class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. अब ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास में अगर एक बच्चे को कोल्ड है या कफ है तो मेनी चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड दैट चाइल्ड, बट एवरीवन इज नॉट गेटिंग दैट इन्फेक्शन. दैट इज इंपॉर्टेंट दैट एक्सपोजर तो सब बच्चों में हो गया उस वायरस का, बिकॉज वेन एवर दैट चाइल्ड इज कफिंग और स्नीजिंग, तो दोज बिकॉज कोल्ड एंड कफ दे कॉमन कोल्ड इज अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय एयर. तो एयर में वो माइक्रोब तो आ ही जाता है. एवरीवन इज एक्सपोज टू दैट, गेटिंग एक्सपोजर टू दैट वायरस, बट एवरी चाइल्ड सिटिंग अराउंड देम, sitting around that infected child does not or do not suffer from that disease. Reason? This is because the immune system of our body is normally fighting off microbe. तो जिसका immune system strong होगा वो fight करके win कर जाएगा उससे, and someone can lose. उसका जो immune system अगर weak होगा, that will not be able to kill those infecting microbes entering in the body. So these cells go into action each time infecting microbes enter the body. तो आपकी immune cells जो हैं fight करती हैं हर बार जब एक नया microbe आपकी body के अंदर enter होता है. If they are successful, we do not actually come down with any disease. और अगर हमारा इम्यून सिस्टम सक्सेसफुली फाइट कर जाता है माइक्रोब्स के साथ, तब हमें वो डिजीज नहीं होती. एंड द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट अज्यूम्स मेजर प्रॉपर्टीज, मेजर प्रोपोर्शंस. तो इम्यून सिस्टम हमारा उसको अगर
उसके लार्ज नंबर में मल्टीप्लाई होने से पहले ही अगर उसको किल कर देता है, तो वी नेवर यू कैन से फील दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, इवन इफ दैट यू कैन से माइक्रोब इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट उसका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो इतना माइनर रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता, अननोटिस्ड रह जाती है वो डिजीज, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक भी कहते हैं, ठीक है। As we noted earlier, if the number of the infecting microbes is controlled, the manifestation of the disease will be minor. And in other words, becoming exposed to or infected with an infectious microbe does not necessarily mean developing noticeable disease. This is very important कि एक microbe के अगेंस्ट मतलब एक्सपोजर जो हमारा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नेसेसरीली वो डिजीज डेवलप होगी बॉडी के अंदर, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर इम्यून सिस्टम. सो वन वे ऑफ लुकिंग एट सिवियर इन्फेक्शियस disease is that it represents a lack of success of immune system. एक सेम टाइप ऑफ माइक्रोब किसी फैमिली में एक पर्सन को बहुत सीवियरली इन्फेक्ट कर जाता है, और दूसरे बाकी जो पर्सन है फैमिली मेंबर्स, दे जस्ट गेट माइनर यू कैन से सिम्टम्स, और समटाइम्स they do not have any noticeable symptom. ठीक है, तो it all depends on the difference, or you can say strength of the immune system to fight with that particular disease. तो अगर immune system successfully fight कर रहा है, then disease cannot cause any you can say harmful effects on the body. And the functioning of immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. Therefore, the second basic principle of prevention of infectious disease is the availability of proper and sufficient food for everyone. So underline this second basic principle of prevention. But a general जो हमारे प्रिंसिपल हैं इन प्रिवेंशन के, फर्स्ट है पब्लिक हाइजीन, जिसमें आपको डिपेंड करता है कि किस टाइप की डिजीज स्प्रेड हुई हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को प्रिवेंट करना एक्सपोजर से. सेकेंडली, एक्सपोजर होने के बाद जो एक दूसरा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, वो हमारा इम्यून सिस्टम. वंस वी आर एक्सपोज टू एनी वायरस, तो इम्यून सिस्टम fights against it, and if it is successful in that fight, then we will not have any noticeable disease. Okay, तो उस केस में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसकी स्ट्रेंथ या उसकी जो एक एबिलिटी है वो डिपेंड करती है प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड पे. तो देयर आर टू जनरल वेज बाय विच वी कैन prevent ourselves from getting infected with these virus or microbes. Firstly, prevent exposure by you can say following hygienic environment, and secondly, we must have proper and sufficient nourishment. जो proper nourishment हमारी बॉडी को चाहिए वो फूड हमें लेना है. अब इसके बाद जो आता है स्पेसिफिक वे क्या है, ये जो हमने पढ़ी ये जनरल वेज है. जनरल वेज का मतलब कि मतलब एक ओवरऑल हम कहते हैं कि जो डिजीज कॉज हो रही है जिस वजह से, उनसे अपने आप को प्रिवेंट करना. अब स्पेसिफिक वे के अंडर आएगा कि उस डिजीज के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल हो जो हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सके, एंड आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन आवर इम्यून सिस्टम विल बिकम यू कैन से एक जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करेगा इन फ्यूचर दैट वायरस, एंड विल बी एबल टू प्रिवेंट दैट you can say manifestation of disease. तो इसको हम कहेंगे, अभी यहाँ पर just wait. तो what are these specific ways? अभी जो हमने पढ़े वो general ways थे, having good and nourished food और balanced food, and secondly public hygiene. 2 हो गए general ways. Specific ways के लिए हमें हमारी इम्यून सिस्टम की वो प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बहुत बार बताई है कि हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा होता है कि अगर कोई न्यू माइक्रोब एंटर कर रहा है, न्यू कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जो फर्स्ट टाइम बॉडी में जब एंटर करता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और उस कंडीशन में वो एक नए, क्योंकि एक नया दुश्मन जब एंटर हो गया बॉडी के अंदर, तो एक न्यू मेथड से उसको इम्यून सिस्टम को उसके अगेंस्ट फाइट करना पड़ता है. तो सारी एक तरह की यू कैन से फाइटिंग की मैकेनिज्म बनानी पड़ती है इम्यून सिस्टम को. इट टेक्स टाइम समटाइम्स, और वो माइक्रोब अगर बॉडी में सक्सेसफुली अपने आप को
मल्टीप्लाई कर लेता है उस पर्टिकुलर टिश्यू में या जिस ऑर्गन में या जिस सेल में भी वो एंटर हुआ है, तो देयर इट कैन कॉज वेरियस हार्म, बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, एज वी आर just like we are experiencing these things in today's scenario ना, कोविड-19 क्या, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इस न्यू वायरस को आइडेंटिफाई अभी नहीं कर पाया, क्योंकि आगे कभी ये वायरस नहीं था ना, बिकॉज जब भी कोई न्यू माइक्रोब आता है तो उसके अगेंस्ट बॉडी इसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। अब क्या होता है, वैक्सीन, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं माइक्रोब्स को डेड या वीक फॉर्म में हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस भी हो सकते हैं और समटाइम्स ओरल मेडिसिन की फॉर्म में भी, जैसे पोलियो ड्रॉप्स होती हैं। तो दीज माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी इन डेड और वीकेंड फॉर्म, और उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, जब ये बहुत वीक फॉर्म में माइक्रोब एंटर हुए हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इनको इजीली फाइट कर पाता है, और उस टाइम पे जब वो फाइट करने के लिए जो सेल्स को रिक्रूट करता है उस टाइम पे, जिसको हम जनरली एंटीबॉडीज भी कह सकते हैं, वो हमारी बॉडी में जब बन जाती हैं एक बार, तो जब भी कभी हमारी बॉडी फिर दोबारा उस इन्फेक्शन से एक्सपोज होगी, मतलब वेन एवर सेकेंड टाइम इन्फेक्शन विल कॉज इन आवर बॉडी, देन आवर इम्यून सिस्टम विल इजीली आइडेंटिफाई, अब उसको पता होगा कि ये तो वही वाला दोबारा से आया, तब वो उसको और विगरसली फाइट करके खुद सक्सेसफुल हो जाएगा उस डिजीज को खत्म करने में। तो दिस इज व्हाट द वैक्सीन्स आर डूइंग। तो वैक्सीन्स अभी जिस डिजीज की हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दोज डिजीज आर स्टिल वेरियस, यू कैन से स्कैरी, क्योंकि हम लोगों के पास और कोई क्योर नहीं है उनका, जस्ट लाइक कोविड-19। बट इफ वी आर गेटिंग अ वैक्सीन और वी आर गेटिंग वैक्सीनेटेड फॉर a kind of disease, then there are very less chance that we'll suffer, और समटाइम्स अगर होगा भी तो वो उतना विगरस नहीं होगा, उतना सिवियर नहीं होगा जितना नॉर्मल विदाउट वैक्सीन हो सकता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल बेटा आपकी बुक में है वो स्मॉल पॉक्स, उस दिन कुछ बच्चे क्लास में पूछ रहे थे मैम स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या डिफरेंस है। बेटा स्मॉल पॉक्स ऐसी डिजीज है जो चिकन पॉक्स का ही एक विगरस फॉर्म है। स्मॉल पॉक्स को अगर आपने कभी हिंदी नेम सुना हो, चेचक जो डिजीज होती जो पहले होती थी, आज से अराउंड 100 ईयर्स पहले, बहुत ज्यादा, मतलब 100 ईयर्स पहले तक तो थी भी नहीं, उसके जस्ट बाद जब ये आई तो इट वाज जस्ट लाइक एन एपिडेमिक, कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा महामारी की फॉर्म में ये फैल गई थी, और बहुत सारे लोगों के लिए इतनी हार्मफुल थी कि मतलब लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत लोगों की डेथ भी हुई इससे, एंड सम पीपल लॉस्ट देयर आईज ऑल्सो, क्योंकि स्मॉल पॉक्स की जो स्मॉल पॉक्स में जो रैशेज होते हैं, वो रैशेज इतने ज्यादा स्कार फॉर्म कर देते हैं, मतलब इतने ज्यादा उनके निशान जो पड़ जाते हैं स्किन पे, और समटाइम्स अगर आईज में हो जाता है तो दैट पर्सन कैन सफर फ्रॉम लॉस ऑफ आईज ऑल्सो, मतलब ब्लाइंडनेस भी कॉज हो जाती है इसकी वजह से, तब होती थी। बट नाउ दिस डिजीज इज नॉट एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ a scientist named Edward Jenner who successfully prepared vaccine against this virus, जो smallpox virus है। अब वो स्टोरी पूरी आपके बुक में यहाँ पर गिवन है, just read it. As recently as 100 years ago, smallpox epidemics were not at all uncommon. In such an epidemic, people used to be very afraid of coming near someone suffering from the disease since they were afraid of catching the disease. और ये highly contagious थी, हर एक, मतलब अगर किसी को स्मॉल पॉक्स या बीमारी होती थी तो उसके आसपास होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, बिकॉज यू नो दैट चिकन पॉक्स अभी भी जो उसका माइनर फॉर्म है वो सोसाइटी में अभी भी कुछ बच्चों को होता है, तो उसमें आपको यही एडवाइस किया जाता है कि यू शुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज दिस डिजीज इज हाईली कंटेजियस, फिजिकल कॉन्टैक्ट से इजीली स्प्रेड होती है, ठीक है। तो however there was one group of people who did not have this fear, और उस टाइम पे ये ऑब्जर्व किया गया कि एक ग्रुप ऐसा था सोसाइटी में जिसको इस डिजीज का कोई फियर नहीं था, बाकी सब लोग डरते थे उस डिजीज के, जो मतलब पर्सन थे जो अफेक्टेड थे इस डिजीज से, उनके पास आने से भी डरते थे बाकी लोग, बट एक ग्रुप ऐसा था जिसको ये डर नहीं था। कौन सा था वो ग्रुप? जो उन पेशेंट्स की केयर करता था, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर्स हो गए या नर्सेज हो गई, तो द पीपल वुड प्रोवाइड नर्सिंग केयर फॉर द विक्टिम्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स। वो क्यों उनको फियर नहीं था? बिकॉज वो एक बार एक्सपोज हो चुके थे अपनी लाइफ टाइम में इस डिजीज से, और वो उनको माइनर से सिम्टम्स आए, उसके बाद उन्होंने जब इसको सक्सेसफुली क्योर हो गए वो, तो उसके बाद बॉडी उनकी इम्यून होगी उस पर्टिकुलर डिजीज से। तो दिस वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्लियर एंड सर्वाइव्ड इट।
ठीक है, जिनको पहले हो चुका था और वो सरवाइव कर चुके थे इससे फाइट करके, ऑल्दो विद अ लॉट ऑफ स्कैरिंग। स्कैरिंग इसके निशान जो रह जाते हैं स्किन पर। In other words, if you had smallpox once, there was no chance of suffering from it again. So having the disease once was a means of preventing subsequent attacks of the same disease. ये अंडरलाइन करो। अभी भी अगर डॉक्टर्स चिकन पॉक्स किसी बच्चे को होता है ना, तो फैमिली में अगर किसी और को हो जाए, देन डॉक्टर्स से दिस थिंग कि एक बार होगा उसके बाद चांस बहुत कम होते हैं। समटाइम्स इट कैन अफेक्ट सेकेंड टाइम ऑल्सो इफ योर इम्यून सिस्टम इज वीकर. This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. वो उसकी मेमोरी में रहेगा permanently, एक बार अगर कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है. So the next time that particular microbe or its close relative enter the body, the immune system responds with even greater vigor. And this eliminates the infection even more quickly than the first time around. This is the basis of principle of immunization. Underline this entire paragraph, starting from the first line. This happens, और यहाँ से आप कर सकते हो, having the disease once was a means of preventing subsequent attack of the same disease. Starting from this having से लेके ये पूरा principle of immunization is important. Can be asked in 2 mark or 3 mark question. What is meaning of immunization or what is the basic principle of immunization? एक बार बॉडी जब किसी माइक्रोब के एक्सपोजर में आती है तब उसको हमेशा के लिए याद रखती है, और नेक्स्ट टाइम व्हेन वी get exposed to that particular microbe, our body responds vigorously and it is able to fight off successfully. This is how Edward Jenner prepared the vaccine. Just have a look at this. Immunization. Traditional Indian and Chinese medicinal systems sometimes deliberately rub the skin crust from smallpox victims into the skin of healthy people. ये देखो, ये ट्रेडिशनल एक मेथड था जिसमें स्मॉलपॉक्स जो चेचक डिजीज के जो विक्टिम्स होते थे, पेशेंट्स होते थे, उनके स्किन पर जो मार्क आते थे, स्किन क्रस्ट होते थे, जो जब ये डिजीज थोड़ा सा ठीक होने लगती है ना, तो स्किन के ऊपर जो रैशेस होते हैं उनके ऊपर एक हार्ड सी क्रस्ट बनने लगता है. उस क्रस्ट को वो रब करते थे हेल्दी पीपल के स्किन पे. इससे क्या होता था, वो हेल्दी पीपल जब वो वायरस अब थोड़ा वीक हो गया, जब क्रस्ट बनने स्टार्ट हुए, तो उसके एक्सपोजर में आते थे और उसको वो आइडेंटिफाई फिर इजीली कर पाते हैं. तो दे जस्ट होप टू इंड्यूस अ माइल्ड form of smallpox that would create resistance against the disease. तो ये क्यों किया उन्होंने कि उन लोगों में भी वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, उनका इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर पाए उस पर्टिकुलर स्मॉलपॉक्स के वायरस को. तो फेमसली 2 centuries ago, an English physician named Edward Jenner realized that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox even during epidemics. तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग एक्चुअली जो काउ मिल्क जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, वो काउज को एक डिजीज होती है, वो इस स्मॉल पॉक्स की जैसी होती है. मतलब जो वायरस है वो सेम फैमिली का है. जैसे अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज में कई बार कि कोरोना वायरस न्यू नहीं है हमारे सोसाइटी में, जो कॉमन कोल्ड भी होता है, सार्स वायरस, ये सब एक ही फैमिली के वायरस है. तो ये कोरोना वायरस की 12-13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस दे आर एग्जिस्टिंग इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, बट अभी जो न्यू आया कोविड-19 सार्स कोविड-2 वायरस, जिसको नेम दिया अभी, दिस इज न्यू फॉर एवरीवन. दैट इज व्हाई इसके लिए अभी तक इम्यून सिस्टम हमारा प्रिपेयर्ड नहीं है. ठीक है, तो सिमिलर काउपॉक्स इज अ डिजीज विच कैन कॉज हार्म टू काउज, बफेलोज, मतलब जो भी ये एनिमल्स है हमारे, और उसके साथ साथ ये उन एनिमल्स के कांटेक्ट में जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको भी हो सकता है. तो वो लोग जो काउस के कांटेक्ट में रहते हैं उनमें एक डिजीज, मतलब ये काउपॉक्स वायरस ऑलरेडी वो एक्सपोज हो चुके थे उस वायरस से, तो उनको स्मॉल पॉक्स डिजीज भी अफेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स सेम फैमिली के वायरसेस हैं. तो दोज पीपल who have already infection or exposure to cowpox, they will not you can say कि उनको वो स्मॉल पॉक्स का वायरस उतना हार्म नहीं कर पाया. तो ये चीज जब उस एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व की, तब उसने किस तरह से वैक्सीन बनाई. लेट अस सी. तो cowpox is a very mild disease. Jenner tried deliberately giving cowpox to people
as he can be seen doing in the picture. ये तो पिक्चर जो दिखाई है कि वो काउपॉक्स के वायरस इंजेक्ट कर रहा था. काउपॉक्स माइल्ड फॉर्म है, हार्मफुल इफेक्ट नहीं है उतना जितना चिकन स्मॉल पॉक्स का है. एंड फाउंड दैट दे वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स. दिस वाज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू द cowpox virus. Cow is vacca in Latin and cowpox is vaccinia. ये तो जस्ट एक बताया कि किस तरह से वैक्सीन वर्ड जो है वो बना और वैक्सीनेशन टर्म कैसे बनी. तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल पॉक्स को उसने क्योर किया लोगों को काउपॉक्स वायरस इंट्रोड्यूस करवा के. काउपॉक्स वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स वाले वायरस की फैमिली का ही वायरस है, बट इट हैज वेरी माइल्ड सिम्टम्स. और वो काउपॉक्स के वायरस को भी वीक फॉर्म में उसने इंट्रोड्यूस किया ये छोटे छोटे बच्चों में, क्योंकि ये आफ्टर बर्थ ही लग जाती है ना जनरली वैक्सीन. आप लोगों का जब बर्थ व्हेन अ बेबी इज बोर्न तो विद इन 5-6 years द एंटायर वैक्सीनेशन इज completed. So this vaccination is very important because जितनी भी एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए कोई भी माइक्रोब उसके इम्यून सिस्टम के लिए न्यू होता है. बिकॉज व्हेन अ चाइल्ड इज एंटरिंग इन दिस वर्ल्ड, तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही इज एक्सपोज टू वेरियस टाइप ऑफ microorganisms. So this is why it is important to get vaccination. ठीक है, तो that is various types of vaccines are available. तो सबसे पहली वैक्सीन आपने याद रखनी है, it was made by Edward Jenner for the disease smallpox. Next is, we can see that as a general principle, we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something. मतलब हम उसके close relation वाली ऐसी कोई चीज बना दें, ऐसे कोई माइक्रोब इंट्रोड्यूस करवा दें जो exactly उसकी तरह ही है, तो हम हमारे इम्यून सिस्टम को फूल कर सकते हैं. मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को एक ऐसी चीज चाहिए जो इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर माइक्रोब को आइडेंटिफाई करके विगरसली अटैक करे उसके ऊपर. तो developing a memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe. उस माइक्रोब के जैसा ही होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे कि या तो उस माइक्रोब को वीक फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाएं, या उसका कोई डेड फॉर्म हो, या उसका बिल्कुल क्लोज रिलेटिव कोई पता हो हमें जो ये काम कर सकता है. ठीक है, तो this does not actually cause the disease, but this would prevent any subsequent exposure. So many such viruses are now available for preventing a whole range of infectious diseases and provide a disease-specific means of prevention. There are vaccines against tetanus. You just underline जो vaccines हमारे पास available हैं. Tetanus के लिए है, diphtheria, whooping cough. ये whooping cough, diphtheria दोनों बेटा बच्चों में होने वाली respiratory problems है, and it can cause harmful effects on respiratory systems. Lungs पे भी harmful effect है. Measles आपको पता ही है चिकन पॉक्स की तरह, उसका mild form एक कह सकते हो आप. पोलियो इज तो नाउ इरेडिकेटेड. अब पोलियो नहीं होता हमारी सोसाइटी में, या इंटायर वर्ल्ड में ही आप कह दो इरेडिकेट हो गया है बाय दैट पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम. एंड मेनी अदर वैक्सीन्स वी आर आल्सो हैविंग. उसके लिए चिकन पॉक्स के लिए भी है वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए एंड बी के लिए भी हमारे पास वैक्सीन हैं. तो these form the public health program of childhood immunization for prevention of infectious diseases. Of course, such a program can be useful only if such health measures are available to all children. Can you think of reasons why this should be so? Reason वही है बेटा, अगर ये programs available नहीं होंगे तो poor जो हैं लोग, अगर उनके लिए, because that is the reason that in all you can say public hospitals जो हमारे like government hospitals and especially civil hospitals जो होते हैं, वहां पर free of cost ये immunization program होता है, so that all poor people can also get their children vaccinated, because it is very important for preventing any infectious disease. Some hepatitis viruses which cause jaundice are transmitted through water. There is a vaccine for one of them, hepatitis A, in the market. But the majority of children in many parts of India are already immune to hepatitis A by the time they are 5 years old. इसका रीजन क्या है? 5 year old एज तक, मतलब मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो एक्चुअली ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत ज्यादा मतलब या तो वो लोग ही अवेयर नहीं है कितना वाटर, मतलब किस तरह से हमें यूज करना चाहिए ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर, और जिनके घरों में अवेलेबल नहीं है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फिल्टर्स नहीं है, या ऐसे जगह से वो लोग
पानी कंज्यूम कर रहे हैं पीने के लिए जो उतना क्लीन नहीं है, तो ऑलरेडी उनकी बॉडी, क्योंकि हेपेटाइटिस ए इतना मेजर नहीं इफेक्ट डालता बॉडी में, तो ऐसे बच्चे ऑलरेडी विदाउट गेटिंग दैट वैक्सीन दे आर ऑलरेडी एक्सपोज टू दैट पर्टिकुलर वायरस, और बॉडी अपने आप ही इम्यून हो जाती है। इसीलिए आप लोग कभी सोचते भी होंगे कि हम लोग अपनी इतनी केयर करते हैं, बट वी आर नॉट able to fight off sometimes a minor disease, but the children of these poor people who are just every time they are eating any kind of thing, और कहीं से भी वो पानी पी रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं और किसी भी तरह के like environment में वो रह रहे हैं, but they are not getting infected with disease। तो रीजन क्या होता है, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में रह के वो उन माइक्रोब्स के एक्सपोजर में ज्यादा आ पाते हैं, और जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतनी बॉडी इम्यून होती जाती है। बट दिस इज नॉट सो कि एवरी टाइम इट विल हैपन कि कोई भी वायरस उनको या कोई भी माइक्रोब उनको इफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज नॉट सो। ये माइल्ड केसेस के लिए होता है कि जो ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनके माइल्ड इफेक्ट रहते हैं बॉडी पे, वहां पर वो एक्सपोजर होना मतलब इम्यून कर सकता है बॉडी को। बट एक बहुत ज्यादा हार्मफुल डिजीज वाला वायरस तो वो किसी के लिए भी इतनी इजीली इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। अपने आप भी बॉडी इम्यून हो जाती है अगर हम किसी पर्टिकुलर माइक्रोब के एक्सपोजर में आए, या फिर उसको वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो इम्यूनाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू एनी इन्फेक्शियस डिजीज। रेबीज वायरस भी बेटा एक्चुअली इन्फेक्टेड, या थोड़ा सा एक्टिविटी ये देख लो। रेबीज वायरस इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में मंकीज भी हो सकते हैं, समटाइम्स लाइक कैट्स वगैरह भी, बट कैट का इतने चांसेस नहीं होते, डॉग्स एंड मंकीज का ज्यादा है। देयर आर एंटी रेबीज वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो जिनके घर में पेट्स होते हैं वो जनरली उनको एंटी रेबीज की वैक्सीन लगवा के रखते हैं, बट स्ट्रे डॉग्स डू नॉट हैव वैक्सीन, दे आर नॉट वैक्सीनेटेड एक्चुअली। Find out the plan of your local authority for the control of rabies in your neighborhood. Are these measures adequate? If not, what improvements would you suggest? So just like thinking question है, but हमारी सोसाइटी में otherwise जो स्ट्रे डॉग्स हैं, लोकल अथॉरिटी ने उनको इम्यून अभी नहीं किया हुआ, तो यू कैन सजेस्ट दैट लोकल अथॉरिटी और जो हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इट शुड प्रोवाइड प्रॉपर वैक्सीनेशन फॉर स्ट्रे डॉग्स एज वेल, अदरवाइज इट कैन कॉज, बिकॉज अदरवाइज सारे डॉग्स में तो रेबीज वायरस नहीं होता, बट वी कैन नॉट मतलब अगर हमें सिम्टम्स किसी डॉग में दिख रहे हैं तब तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, बट अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड दैट विच डॉग इज having that particular rabies virus in his body. Now this is all about the chapter. If anyone is having any doubt, they can ask.